شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اقوام عوام کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ملک اگر چلے یا آگے بڑھے یا مسائل کا شکار ہو جائے تو اس کا واحد پیمانہ وہاں پر موجود عام عوام، وہاں پر بسنے والی اللہ رب العزت کی مخلوق کی آسائشوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر وطن عزیز کا ذکر کیا جائے تو وطن عزیز سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے ایک ایسی سچویشن سے نبرد آزما ہے جہاں حالات کبھی بگڑ جاتے ہیں، کبھی کچھ بہتر ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن آسائش کا معاملات عام نہیں ہو پاتے۔ اس میں سب سے آج بھی بنیادی چیزیں جو عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں، جن سچویشن سے وہ کوپ اپ کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بجلی ہوا کرتی ہے، کبھی پانی کی دستیابی ہوا کرتی ہے، کبھی گیس کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قصہ مختصر یہ کہ عام آدمی کو آج بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے لالے ہیں، اور جن اقوام میں روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں وہ اقوام آگے بڑھنے میں نہ تو ٹیکنالوجی میں انوویشنز لا سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کے کچھ بڑے پہاڑ گرا سکتی ہے۔ مسائل اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی کمانا دوبر ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم اسی سچویشن سے نبرد آزما ہیں۔ اب اس ضمن میں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوا کرتی ہے، اس حکومت کی جس نے کبھی تبدیلی کا ذکر کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی بہتری کا وعدہ کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی عوام کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات میں بات کی ہوتی ہے کہ آنے والا کل وطن عزیز کی عوام کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ گیس کرائسس جو ہے ہر سردیوں میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ پریشانی ہوا کرتی ہے، وہ یہی گیس نام کی چیز ہوا کرتی ہے۔ چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، مسائل شدید ہو جاتے ہیں، اور یقین مانے کہ ایل پی جی کی سچویشن میں اگر ایل پی جی بھی ایک نعمت کے طور پر موجود نہ ہوتی تو زندگی آگے چلانا مشکل ہو جاتا۔ غاروں کے دور میں واپس پھینکنے والی کہانیاں تھی، آج لاہور میں نکل رہے جی۔ لاہور کی عوام سے سمجھیں گے کہ گیس کے مسائل کو لے کر ان کو کس کس قسم کے معاملات کا سامنا ہے اور دکھانا کس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام عام عوام کے لیے نہیں ہے، یہ پروگرام ذمہ داران کے لیے ہے جن کی ذمہ داری مسائل کو حل کرنا تھا، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ کوئی شخص بنیادی انسانی حقوق اس کے سلب نہ ہو سکے۔ آج ان کو دکھائیں گے کہ عوام کیا سوچتی ہے، عوام کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں، تاکہ آپ کو ایک اپرچونٹی مل سکے اس پروگرام کے تھرو کہ اگر آپ کوئی بہتری عام کرنا چاہتے ہیں، خیریت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم، آگے بڑھیں، اپنا کام کریں۔ اچھا جی، جب گھر میں گیس نہیں آتی تو بیگم صاحبہ کھانا سالن تو بہرحال پکا لیتے ہوں گے تمام گھروں میں، لیکن روٹی باہر سے لانا پڑتی ہے، اور جب روٹی باہر سے لانی ہے تو obviously تنور سے لے کے آنی ہے۔ اب گھر کے معاملات، گھر کے مسائل گیس نہ ہونے کی وجہ سے تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن تنور مالکان کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں اور درپیش ہوتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے بھائی کا؟ عامر شہزاد صاحب۔ عامر بھائی، گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سر آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اوپر سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سلنڈر لگایا ہوا، بہت گیس کی بہت زیادہ تنگی ہے یہاں پہ، بہت گیس کا مسئلہ ہے، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور مسجد کے نام لگتے ہیں پیر والے دن تو وہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، گیس آتی نہیں پوری رات، دن میں بھی نہیں آتی، سلنڈر دو لگ جاتے ہیں دن میں۔ یعنی کہ اپنا کاروبار بچانے کے لیے آپ کو سوئی گیس سے ایل پی جی پہ شفٹ ہونا پڑ گیا؟ جی بالکل۔ اس سے کتنی کاسٹ کتنی بڑھ جاتی ہے؟ بہت زیادہ، اس میں تو ہمیں زیادہ 2000 کا ڈیلی کا نقصان ہوتا ہے، 2 سے 3000 کا ایک تنور کو۔ ہاں، کیونکہ آدمی کم کرنے پڑیں گے، آدمی کم ہو گئے تو کام کیسے ہوگا یہ بتائیں آپ؟ اب ہماری دہاڑی کٹے گی یا کم، ہم کیسے پیٹ بھر سکتے ہیں اپنا؟ پیٹ بھی نہیں بھرے گا تو ہماری دہاڑی کام ہوگی تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ چوری ڈکیٹی کریں گے اور کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف کرے، تنور مالک تو obviously اپنا نقصان نہیں کروائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا معاملہ نکالے گا، بندے کام کرے گا، مختلف چیزیں کرے گا، ایسے کرے گا۔ تو جو بے روزگار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آپ جہاں بھی جاتے ہو بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ لیکن بولا تھا کہ پاکستان نیا بنے گا تو یہ نیا پاکستان بن گیا نا ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے، بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ ویسے مسائل یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نیا پاکستان تو بنا لیا ہے نا، بس کیا کہنا نئے پاکستان والوں کے لیے کوئی پیغام دے دے تاکہ شاید ہماری تو سمجھ نہیں آتی آپ کی آ جائے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بس اس کو بہتر کر دیں، گیس کی مشکل آسان کر دیں، اور کچھ بھی
कुछ बढ़ाने से पहले ये भी सोचा करें कि मजदूर कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बात आपने बड़ी पता की। नाज़रीन, होता क्या है कि एक कलम हिलाया जाता है और उसके सिग्नेचर्स के साथ प्राइस राइज कर दी जाती है और तमाम अवाम को बता दिया जाता है कि आज से प्राइस ये होगी, रोटी की कीमत ये होगी, आपकी गैस की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बदल गई। और बढ़ाने वाले वो लोग होते हैं जिनको बुनियादी मसाइल का पता ही नहीं होता। और एक हैरान कुन चीज है, अच्छा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं, उससे कभी रोटी का वजन कम होगा, कभी नहीं होता, तो पूरा कहाँ से करते हो? वजन यहीं से पूरा करते हैं, नुकसान करना पड़ता है अपना, यानी जाती नुकसान, किसी न किसी का नुकसान होता है। अब मतलब जो रोटी का 120 ग्राम खमीरी रोटी का वजन है, तो इसको एक कम करेंगे तो आपका चलान हो जाएगा। और अगर कीमत बढ़ाओगे तो भी चलान हो जाएगा। कीमत बढ़ाओगे तो भी चलान है। और कस्टमर यहाँ से खराब हो जाता है कि यहाँ पे रेट बढ़ता है और रोटी का वजन कम हो जाता है। रोटी का वजन कम करेंगे तो भी नुकसान है, अगर रेट बढ़ाएंगे तो भी नुकसान है। अब हम कहाँ पे जाएं? बहरहाल जी, बहुत दुरुस्त बात करें, वो अपने मसाइल की, अपनी सिचुएशंस की निशानदेही करें कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं, किन किन सिचुएशंस को वो कोप अप कर रहे होते हैं जब गैस जैसी बुनियादी ज़रूरत नायाब हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई जिम्मेदार तैयार नहीं होता। आगे चल रहे हैं जी, मार्केट में मसाइल और मामलात को समझने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरीके से जूझ रही है आम आवाम अपना पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। नाज़रीन, 2021 में दाखिल होने के बाद ये समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया एक रेवोल्यूशन के पीछे चल रही है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाली है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वतन अजीज में, पाकिस्तान में और पंजाब के तख्त लाहौर में आज भी बुनियादी जरूरियात के लिए आम आदमी रो रहा है, आम आदमी बेपता कर रहा है, भीख मांग रहा है। एक और जगह पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। गैस आती है? सर गैस तो आती नहीं है, 24 घंटे गैस नहीं आती है। बिल्कुल हम तो महरूम हो गए हैं गैस से। तो कारोबार कैसे करते हैं? कारोबार सिलेंडर पे। तो उसके बाद वो एलपीजी शॉर्ट हो जाएगी, एलपीजी की कीमतें चढ़ जाएंगी। कीमतें चढ़ी हुई हैं सर, कीमतें कम है ही नहीं। पहले सिलेंडर 3500 4000 का आता था, अब 6000 का हो गया। वजह क्या है, मसला क्या? गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि अवाम की जरूरियात क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, पता भी नहीं चलता क्या? ये तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना कि अवाम जो निचला तबका है, इनको समझना चाहिए कि यार ये रोजी कमाते हैं, इन पे इतनी महंगाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताएं कि एक दिन अचानक आप रात को सोते हैं तो पता चलता है सब ठीक है, अगले दिन अचानक से उठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार सब कुछ खराब हो गया, कीमतें बढ़ गई, आसमान पे चली गई है। कितनी बड़ी परेशानी आ गिरती है फौरन सर पे। बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हर कस्टमर हमारे साथ झगड़ा करता है कि यार इतनी महंगी क्यों चीजें हैं। हम कहते हैं कि यार पीछे से चीजें महंगी हो गई हैं। कितना मुश्किल होता है जब आप आज आपकी प्राइस और है, सुबह प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ाने के बाद ग्राहक को इस चीज पर कायल करना कि कीमत बढ़ गई हुई है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है ग्राहक को इस बात पे एग्री करना कि यार हमारी कीमतें बढ़ गई हैं, सामान बहुत महंगा हो गया है। और ग्राहक ये कहता है कि यार इतनी जल्दी क्यों महंगा हो गया है। कोई पैगाम दे दे पैगाम साहब के लिए। खान साहब के लिए पैगाम तो यही है कि ये जो आटा, चीनी और घी है ये सस्ता करें, और गैस प्लीज गैस जो है उसकी लोड शेडिंग खत्म करें, उनकी मेहरबानी। गैस की लोड शेडिंग खत्म करें ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी पर उस तरीके से बोझ न पड़ सके और आपकी एलपीजी के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसकी वजह यह है कि शदीद सर्दी का मौसम है, इसमें लोगों ने अपने खाने पीने के साथ यानी रोटी पानी के साथ साथ उन्होंने अपनी बुनियादी मामलात को आगे चलाना है। सर्दी में बहुत आसानी से कह दिया जाता है, जब आप सुई गैस के बिल के पीछे देखते हैं तो वहां पर एक बिजली का रॉड वाला हीटर बना होता है कि जी ये सुई गैस पे ना चलाएं, बिजली पे चलाएं। या आप वापडा के बिल के पीछे देख रहे थे तो वहां पर क्रॉस लगा होता है बिजली के ऊपर और गैस की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा होता है। यानी किस्सा मुख्तसर ये कि आप लोग आपस में छमछम ना खेलें, चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आए ताकि आम आदमी को उसका बुनियादी हक जरूर मिल सके। आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, एक रंग साहब है, ऑब्वियसली इनका भी गैस का काम है, इन्होंने भी अपने कपड़ों की रंगाई के लिए, अपने रोजगार, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इनको भी गैस की जरूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है। गैस नहीं है या एलपीजी है? ये एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। वजह क्या है? देखो
हमारे घरों में नहीं गैस आती तो दुकानों में कैसे मिलेगी? ये क्यों नहीं आती घरों पता में? नहीं ये कैसे है कि जब भी सर्दी स्टार्ट होती है तो गैस भी गायब हो जाती है। क्या कहते क्या जम गई है पाइपों में? पता नहीं कहते जी बस ये लोड शेडिंग है कि घर में रोटी नहीं पकती, बाजार से लानी पड़ती है। एक टाइम की 100 रुपए की रोटी एक बंदे की। अच्छा। जी पूरी फैमिली की? एक बंदे की। क्या मतलब? देखो जी एक सालन लेते हैं ना 50 रुपए ठीक है। का, ठीक है ना, 2 नान लेते हैं 80-90 रुपए ऐसे लग जाते हैं। ठीक है। एक ही बंदा खा सकता है, 2 बंदे तो नहीं खा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी 100 रुपए आप समझते हैं कि आपके घर में पर हेड एक टाइम का खाना लग जी, जाता है। हाँ जी। तो आमदनी इतनी होती है, कुछ भी नहीं, जो होता है हम खर्चे पूरे कर रहे हैं इधर खड़े होके। यानी कि बचत नहीं, बच्चों की तरबियत और आगे बढ़ने के मामलात में कुछ नहीं। पहले प्राइवेट पढ़ाते थे, जैसे महंगाई हुई तो हमने सरकारी में डाला, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया बंद, बच्चे भी पढ़ाई से वजार। आपके लिए आसानी करे, गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? गवर्नमेंट को है कि आवाम का भी सोचे, अपना ही सोच रहे हैं। नहीं, अवाम का सोचेंगे तो अपना सोचेंगे। जाहिर है आवाम के लिए सोचे ना, और कि हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, हमको भी रिलीज देना चाहिए कोई। अच्छा मुझे एक चीज बताएं जी। कि घर की गैस पूरी करने के लिए महीने में कितनी दफा सिलेंडर लाना पड़ता है? कम से कम 2 किलो बढ़ाई ना तो 15 दिन तो लाना पड़ता है। अच्छा। तो 4 बच्चे भी है, घर वाले भी है, चलना होता है, 3 टाइम चलना होता है चूल्हा। बिल्कुल सही कह रहे ऐसे हैं। तो जब रोटी बाहर से लानी है और आप यहाँ काम पे मौजूद है तो भाभी गुस्सा कर जाती है कई वो दफा? करते हैं, लड़ते हैं कि ये क्या जी, जब गैस बढ़ा के दे के जाएंगे, गैस खत्म भी हो जाती है किसी टाइम हम काम पर होते हैं तो। यानी बहरहाल एक कंटिन्यूअस सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग ऑन, आपके सामने रख रहे हैं। वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि आम आदमी की तकलीफ, उसका दर्द सुनने समझने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा हो सके कि कितना मुश्किल होता है इन तमाम मसाइल के साथ घर के 4 पहियों को रेड़ना और आगे लेकर जाना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज एक इंसानी बुनियादी जरूरत यानी गैस के हवाले से बात करें, क्योंकि अगर गैस घर नहीं आएगी तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा और चूल्हा ठंडा पड़ने के नतीजे में घर में मसाइल बढ़ जाएंगे। जिनके पास वसाइल अच्छे हैं वो तो इन मसाइल को कोप अप कर लेंगे शायद, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं है और मसाइल ज्यादा हैं उनके लिए एक ना खत्म होने वाला मसाइल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट बदकिस्मती के साथ यही समझ रही होगी, यही कह रही होगी कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी ठीक है, सेहत अच्छी है? कहाँ रहते हैं? ये एक ब्लॉक में। अच्छा, क्या सूरत हाल है सुई गैस की? यही है कि दोपहर को भी बहुत कम हो जाती है और रात को 8:30 बजे के बाद नहीं आती। 8:30 बजे के बाद नहीं आती? नहीं आती। और दोपहर में जब कम हो जाती है तो उसे खाना शाना पक जाता है कि बस ऐसे गर्म करने वाले रोटी हिसाब है? पकती, बस सालन का थोड़ा बहुत गुजारा था। रोटी नहीं पकती तो रोटी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जाहिर है जब गैस ही नहीं होगी तो रोटी कैसे होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उससे मसाइल कितने बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है कोई घर में मर्द होगा तो वो बाहर जाके लेके आएगा कि खुद लानी पड़ती है? किसी वक्त कोई नहीं होगा तो खुद ले आते हैं, नहीं तो बच्चे आए तो फिर ले आते, बैठे रहते हैं। ठीक है, खर्चा कितना बढ़ जाता है गैस ना आने की वजह? खर्चा बहुत बढ़ जाता है। ये गैस का बिल तो आपने देना ही देना है। देना ही देना। माशाल्लाह इतना बिल आता है 4-4 हजार और गैस नहीं आती। ना आने पे 4-4 हजार बिल एक छोटे से घर का आता है। तो पैगाम देना चाहिए गवर्नमेंट के लिए? पैगाम यही कि उनको चाहिए ख्याल करें, खाने काम के बगैर, खाने के बगैर गुजारा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या इस काबिल गैस होती है कि सर्दी का मुकाबला करने के लिए अगर नहीं। घर में कोई बीमार है कोई हीटर चलाना पड़े? नहीं, हीटर तो बिल्कुल चला नहीं सकते, उसकी छोटी बच्ची बीमार है आजकल इतनी। अच्छा। मगर गैस इतनी कि हम हीटर चलाएं, फिर भी नहीं चला सकते, बच्चा बीमार है फिर बिल्कुल नहीं चला। तो ठंड में ही गुजारा करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जी। आगे चल रहे हैं, आपके सामने मामलात रख रहे हैं। नाज़रीन, सर्दी का मौसम हो और आप घर से बाहर मौजूद हैं तो चाय एक बुनियादी ज़रूरत समझी जाती है, क्योंकि चाय के साथ आप सर्दी के सख्त मौसम को फाइट बैक करने के हवाले से आप ताकत हासिल करते हैं अपने आप को आगे चलाने के मामलात में। तो हम एक चाय के स्टॉल पर मौजूद हैं जी, चूँकि इनका बिजनेस ऐसा, इनका काम ऐसे, यहाँ पर इनसे समझेंगे कि इनको क्या क्या मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई का? अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान भाई, गैस की क्या सूरत हाल है? जब गैस नहीं होती तो कितना बड़ा अजाब खड़ा हो जाता है?
जी हाँ, कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और गैस दिन को आता है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक गैस नहीं होता है, हमें सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी आपने 2 सिस्टम रखे हुए हैं, जब गैस हो तो सुई गैस, अदरवाइज आप एलपीजी पे चले जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है बुनियादी जरूरियात को पूरा करना, जब ये चीजें नहीं हो रही होती तो आपकी कीमत कितनी ऊपर चली जाती है, प्रॉफिट में कितनी कमी आ जाती है, नुकसान में चले जाते हैं? जी हम फॉरवर्ड तो हम लोग ये सर्दी का मौसम जो है ना काम करने का होता है। बिल्कुल, गर्मी में तो इस तरह सेल भी नहीं होती। जी गर्मियों में काम भी नहीं होता है, तो ऊपर से बिल गैस का उतना ही आता। अच्छा, गैस नहीं आएगी तो भी बिल आएगा? बिल आएगा, बिल उतना ही आता। और सिलेंडर का खर्चा जो है ना 1500-2000 रुपए जो हमारा फॉरवर्ड होता है, मजदूरी होता है, वो सिलेंडर में चला जाता है। आपका प्रॉफिट उधर चला गया। जी अब होता ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हम तमाम चीजें जिम्मेदारी के साथ पूरी कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ठीक कहती है, गलत कहती है? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर ठीक है अपने हिसाब से, उनको ठीक नजर आ रहा होगा, लेकिन ये है कि हमें वो सहूलत नहीं मिल रहा है जो पहले था। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि हमारा जो है ना, अब ये है कि हम लोग सालों साल यार इधर प्रदेश में बैठे हुए होते हैं। पहले ये होता था कोई 2-4 रुपए बच जाते थे, हम घर पे 4-5 महीने रह जाते थे। अब वो ये है कि ये तकरीबन 2-3 साल हो गए, अब हम घर नहीं जा सकते। क्यों 2-3 साल से घर ही नहीं गए? गए हुए हैं, ये नहीं कि नहीं गए, लेकिन इस वजह से नहीं जा सकते कि घर चले जाते तो उधर फिर हमारे पास आने के लिए कुछ नहीं होता, तो इतना हम कमाते कि वो कहा जाता है। क्या ये आप हकीकत बता रहे हैं? जी अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, ये परदेसी हैं जो परदेश में मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को आगे चलाने की, अपने खानदानों कबीलों को पालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये यकीन माने कि ये अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन वो मसाइल का शिकार है, आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पंजाबी का मुहावरा है, जिस तरह लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, और बिल्कुल इसी मुहावरे के मिसदाक पूरा मुआशरा चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिसके सर पे पड़ी होती है सिर्फ उसको फिक्र होती है, और दूसरे तमाम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो हम उन लोगों से बात करें जिनको मसाइल का सामना है, जो अजियतें बर्दाश्त करें और उनके बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करें कि उनके तन पे क्या लग रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। सिलेंडर गैस नहीं है? गैस नहीं आ रही, गवर्नमेंट समझती है गैस हर जगह सही आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही गैस, झूठ बोलते हैं। और गैस ना आने की वजह से अजाब कितना बड़ा खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा अजाब बना पे घर भी, यानी कोई चीज वो चाय वगैरह बनानी है और वो गैस नहीं आ रही। अच्छा, सिलेंडर को गैस पर आ गए। कितनी गैस लग जाती है एक दिन में तकरीबन? यानी कि कम से कम 2000 लेके। अच्छा, खाना बनाने के लिए उसे आपका ज़ाहिर है प्रॉफिट भी कम हो जाता है। घर की क्या सूरत हाल है? ये तो दुकान होगी। बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा जी, सुबह के टाइम थोड़ी बहुत है, वरना नहीं। तो नाश्ते के टाइम पे, चाय के टाइम पे, खाना शाना के मेहमान जा रहा है। इस्तेमाल करें। अच्छा, सिलेंडर इस्तेमाल करे तो भाभी गुस्से नहीं होती कि यार गैस आती नहीं, कैसे चलाए, घर क्या करें? सिलेंडर खोल के आगे कर दिया। अच्छा, तो रोटी छोटी बाहर से लानी पड़ती है? वरना बाहर से ले जाते हैं, अगर घर भी बनानी हो तो सिलेंडर इस्तेमाल करके बना लेते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारान की कुछ जिम्मेदारियां हुआ करती हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर तर्क कर दिया जाए, ना समझा जाए, तो यकीन माने पिछली गवर्नमेंट्स जितनी भी गुजरी तमाम इन्हीं मसाइल को देख रही थी, लेकिन इनका हल नहीं हो रहा था। आगे चल रहे हैं, आपकी खिदमत में रख रहे हैं, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। किस्मती से हम लोग रोटी पानी के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। इस कौम को दहाइयों से मसरूफ ही सिर्फ एक काम में रखा हुआ है, सुबह की रोटी खा ली, दोपहर की रह गई, रात की खा ली, अगले दिन क्या करना है। ना इस गोरख धंधे से अवाम निकल सके, ना ही क्रिएटिविटी सोच सके, ना ही दुनिया को कम्पीट करने के लिए आगे बढ़ सके। ये बदकिस्मती का मामला है, और हम ये समझते हैं कि अब इस बदतमीजाना खेल को अब खत्म होना चाहिए। आज बात करें गैस की दस्तयाबी के हवाले से, जो
जो दर्द सर बना हुआ है, अजाब बना हुआ है पूरे मुआशरे के लिए। जो सर्दी शुरू होती है वहीं गैस कहीं बोतल में बंद हो जाती है जिन के तौर पे, और पता नहीं चलता है कौन से समंदर की पाताल में गिर गई है। अब कौन आएगा इसको निकालेगा, आम आदमी सिर्फ ढूंढता रह जाता है। आपको एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगी है, भरना है आवाम ने भरना है जनाब सानू की। एक तंदूर मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर गैस की क्या सूरत हाल है, आ रही है नहीं आ रही? ਗੈਸ ਸਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੰਦੂਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, तंदूर में जला देना। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। घरों में गैस की क्या सूरत हाल है? वहाँ भी यही कहानी है। घरों में भी ऐसी कहानी है कि गैस आती नहीं है। एलपीजी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। एलपीजी को पर लगे में सुई गैस आती नहीं है, जब आ जाए तो प्रेशर नहीं होता। बिल भी उतने ही आते हैं। अच्छा कई दफा ऐसे होता है कि गैस आ रही है प्रेशर नहीं है, उसमें तो दूध गर्म करना ही अजाब हो जाएगा। अजाब हो जाता है, चलता ही नहीं है तंदूर, तंदूर चलता ही नहीं, एलपीजी के साथ ही चल रहा है। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो गैस आ जाती है। वजह क्या है? टाइमिंग्स उन्होंने रखे, प्रेशर कम ज्यादा पता कर नहीं क्या देते हैं। करते हैं वो, हमें तो समझ नहीं आ रही कि जब काम खत्म हो जाता है तो गैस ज्यादा हो जाती है, जब कम का टाइम होता है तो गैस आती नहीं, फिर एलपीजी जल्दी आती है। कोई पैगाम देना चाहिए खान साहब को, बुजदार साहब को, जिम्मेदारान को? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ अच्छा आप खान साहब के वोटर भी हैं ਜੀ माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपकी बात तो उन्हें सुननी चाहिए। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Very ਕਿ good. ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। अच्छा अगर 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 अब भी इस मामला ठीक नहीं होते तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? कारोबार तो अजाब बन जाएगा। कारोबार भी साफ बढ़ जाए और खान साहब की तरफ से फिलजारी भी हो जाए। जहां 2021 अवाम के लिए एक इम्तिहान का साल है, वहीं आप भी इस इम्तिहान में शामिल हैं, आपको भी एग्जामिन किया जाएगा। वजह यह है कि अगर 2021 में भी आप लारे वादे कहानियां देकर 2022 में दाखिल हो जाते हैं तो यकीन माने आपने कुछ नहीं पाया। अवाम का ख्याल करें, उसको इस अजाब से निकालें। लोगों के पास चल रहे हैं, मजीद आपके सामने चीजें रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सके। आपके वुज़रा, आपके मुशीर साहिबान, आपके तमाम साथी आपको ऑल गुड यानी सब अच्छा की रिपोर्ट देते होंगे। खुदारा इस रिपोर्ट पर कान ना धरे, बल्कि अवाम के बुनियादी मसाइल को अवाम की जुबानी सुनने के लिए हम आपके पास मौजूद है। आप तक पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, बुनियादी ज़रूरत यानी गैस की दस्तयाबी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आवाम की ज़रूरत है। और ये ऐसी चीज़ें हैं अगर इनमें मसाइल आ जाए तो दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये कि अगर आपके पास अल्टरनेट का इंतज़ाम नहीं है, यानी एलपीजी का इंतज़ाम नहीं है, और आपके पास इतने वसाइल और पैसे नहीं है कि आप एलपीजी का सिलेंडर भरवा के घर में रख सकें, बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकें, तो आपके लिए जीना महाल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सब चीज़ें हैं तो फिर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो शायद नहीं हो पाती। हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि क्या वाकई कोई प्रॉब्लम है या तमाम कहानियां ही बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। काफी जगह पे प्रॉब्लम है, बहुत जगह पे हमारे भी जैसे आते हैं, कम वाला जैसे होता है। आप आए कहाँ से? ये दराज से। अच्छा, और वो ऐसे आती है जैसे पता नहीं कितने कम वाले चीज रख के भूल जाओ, बिल इतना तरह भेज रहे हैं, यानी कि खाना नहीं पक पाता। खाना पकता बहुत देर से रख के भूल जाओ ना। अच्छा, टाइम ज्यादा लगेगा। हल्के दम वाली गैस होगी तो कितना टाइम लगेगा पकने में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रोटी पकाना, फिर रोटी को तो दम पे नहीं पकाया जा रोटी सकता, पकती नहीं, वो बाजार से तंदूर से। इतनी महंगी लाओ। रोटी पकाने की, खाना बनाने की कॉस्ट कितनी ऊपर चली है? महंगा कितना हो जाता है? महंगा जाके बाजार से, जब सिलेंडर पर महंगा पड़ेगा, ठीक है, बाजार से ला के खाएंगे तो भी महंगा पड़ेगा। कोई पैगाम देना चाहिए गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे। आमीन, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत मुस्ताफिर हो जाए,
नवाज शरीफ को लाया जाए। और नवाज शरीफ को लाया जाए, खुदा के बंदो गैस से चंदा की ताल्लुक है। बहरहाल ये लोगों के इमोशंस है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गैस एक बुनियादी जरूरत है, इसकी दस्तयाबी होनी चाहिए। आप कहाँ पर रहते हैं? गुलशन रावी जी ब्लॉक में। गुलशन रावी जी ब्लॉक में। आपके यहाँ गैस की क्या सिचुएशन है? हमारी गैस सुबह 3 बजे आ जाती है, रात दोपहर 3 बजे या सुबह? ठीक है, वेरी गुड, AM। ठीक है। और शाम 10 बजे बंद होती है। ठीक है। तो गैस की 10 बजे से पहले यानी आपके तो मेजर और ही ये जिनमें गैस की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो हमारा काम हो रहा है। लोगों को वैसे डिस्टर्ब है तो जैसे क्यों? देखे ना, आप अपना काम 10 बजे से पहले कर लें, मैनेजमेंट कर लेना, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, खाना पका लें। रोज रात को 10 बजे पकाना है। बिल्कुल, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जल्दी मगरिब के वक्त खाना खा के सो जाए। ठीक बात है। अच्छा, सर्दी का मौसम है, लोगों के पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो शायद उस तरीके से गर्म कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते। वो कहते हैं यार खाना बना रहे हैं, साथ हाथ सेक ले, कमरा गर्म हो जाएगा, रात को सो जाएंगे। उनके लिए बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जरूरत हुआ करती है। कोई मैसेज देना चाहे पब्लिक के लिए भी कि मैनेज कैसे करें, और गवर्नमेंट के लिए भी कि वो कैसे चीजों को आसान बना सके। देखिए जी, ये सियासतदान जो हमारे हैं ना, उनको चाहिए इनके मतलब काम सोचें, इनके लिए वेलफेयर करें। इनके लिए जो गैस का प्रॉब्लम है, ये पिछले लोगों ने काम ही नहीं किया, जो जिसने भी किया। सर बहरहाल इदारे तो मौजूद थे ना? इदारे मौजूद है, इदारे बिल्कुल मौजूद है। सर्दी पड़ी है, जिससे लोगों की कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो इसलिए ये काम लोगों के, गरीबों के लिए तो हर जगह मार ही मार है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, सादा सा सवाल कि हम हमेशा हर चीज सियासतदानों पर डाल देते। अभी भी हम कह रहे हैं यार पीपल्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिम्मेदार है, पीछे हम कह रहे थे नून लीग पीपल्स पार्टी अलिफ बे जिम्मेदार जिम्मेदार है। ये सरकारी मुलाजिम जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, चीजों को समझते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? असल काम तो उनका, सियासतदान उनके सरपरस्त है। अच्छा, उनको काम नहीं करने देते। क्यों? वो हमारे सिस्टम चलाते हैं अपना सारा। ये क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सरकारी मुलाजिम जो है, सरकारी मुलाजिम तो स्टेट होता है। जो वजीर जो है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, सारा कंट्रोल उनके पास है। MD की क्या मजाल है जनाब अली वो काम ना करे? वजीर की मर्जी के बगैर उसकी पोस्टिंग कर देनी है। यानी कि अपनी पोस्टिंग से, अगर मिसाल के तौर पर सरकारी मुलाजमीन ये तय कर लें कि आज के बाद हम सियासतदान की सिर्फ दुरुस्त बात मानेंगे, गलत बात नहीं मानेंगे, तो कोई सियासतदान सरकारी मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? 2 दफा ट्रांसफर करेगा, बात खत्म। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना सरकारी मुलाजमीन के लिए। एक अपना महकमे में ईमानदार लोग मौजूद हैं, वो उनका नाम भी है, वो काम भी करते हैं। जो लोग खाते पीते हैं वो फिर ऐसे ही करते हैं ना, लोगों के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। ये आज टीम लाहौर पूछता है जो आपके सामने रखी, ये अवामी जज्बात है, अवामी आरा है, इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, इसके साथ भी चला जा सकता है, लेकिन एक चीज तय है कि सियासतदान आते जाते रहते हैं। सियासतदान वो हथौड़े और लठ नहीं हुआ करते जो सरकारी मुलाजमीन को शिकस्त और रेख का शिकार कर दे। लेकिन जब आप हाथ साफ होंगे, आपके दामन पर कोई दाग नहीं होगा, तो यकीन माने अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कुव्वत भी अता फरमा देगा कि आप मसाइल को जवामर्दी के साथ सामना कर सके। और ये बुनियादी जरूरत जो आज आवाम के लिए कज़ाब बना हुआ है, और हर सर्दियों में ये मसाइल जिनकी तरह बोतल में के बंद हो जाते हैं, जमीन की पाताल में चले जाते हैं, कोई गैस को ढूंढने वाला पूछने वाला नहीं होता। यकीन माने सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट से पहले, सियासतदानों से पहले सरकारी मुलाजमीन की है, क्योंकि आप स्टेट हैं, आप पाकिस्तान हैं। सियासतदान है, वो आते हैं जाने के लिए, आप आते हैं मौजूद रहने के लिए। अपने काम करें, आवाम को आसानी आम करें, ताकि ये वतन अजीज रोटी पानी के चक्कर से निकल के आवाम को किसी मस्बत सेमत में पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने के हवाले से आगे लेकर चला जा सके। प्रॉब्लम्स ये है कि हम सुबह दोपहर की रोटी का सोच रहे होते हैं, दोपहर को रात को क्या खाना है, और रात को सोते हुए हमें लाले पड़े होते हैं कि उठने के बाद बच्चों को क्या खिलाना है। खुदारा माफ कर दे, रोटी पानी की जंग से निकाल ले। अस्सलाम वालेकुम।